صغیر اور خصوصاً پاکستان میں جو ایک آرٹ ہے اس کے اوپر اسلامی فکر و فن کے کیا اثرات ہیں فراز صاحب؟ آپ جیسے یہ بات ہوئی کہ جب قوموں پہ زوال آتا ہے تو یہ ہو جاتا ہے کہ ہم پھر باہر سے چیزیں کاپی کرتے ہیں. اس کو میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ سی مثال جو ہے وہ میں ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو ویسٹ کا ہمارے آرکیٹیکچر پہ اثر آ گیا. اگر آپ اپنے دادا یا اپنے والد صاحب کے پرانے گھر میں جائیں تو دیکھیں وہاں غسل خانہ علیحدہ ہوگا لازمی, اور رفع حاجت کی جگہ علیحدہ ہوگی. آج سے کوئی 60 سال پہلے اس کا تصور نہیں تھا کہ یہ دونوں جگہیں ایک ہی جگہ ہو جائیں. یہ اس سے کراہت آتی تھی, سخت آتی, آج بھی آتی ہے, لیکن آج ہر گھر میں وہ جگہ کٹھی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ویسٹرن جس میں ویسٹرن ایستھیٹکس ہے, ویسٹرن آرکیٹیکچر ہے جس کے اندر پاکیزگی اور طہارت یہ اس ایستھیٹکس میں آ ہی نہیں سکتے. جیسے عقیدے کی بات ہوئی تھی, عقیدے کا کیا اثر ہوتا ہے, تو عقیدے کے بغیر وہ طہارت کا تصور آ ہی نہیں سکتا. اور سب سے امپورٹنٹ چیز آپ دیکھیں کہ منیچر پینٹنگ کا دنیا میں کہیں رواج نہیں. اٹ واز ایکچولی اسٹارٹڈ ہیئر کہ انگوٹھی کے اندر ایک خوبصورت مسلمانوں نے اسٹارٹ کیا. منیچر پینٹنگ was basically started by the Muslims. اچھا, اور یہ سب ہمارے پاس ایک رپورٹ ہے جو کہ فنون لطیفہ کی ڈفرینٹ جو اصناف ہیں اس پر ہے, اسپیشلی جو کندہ کاری ہے اس کے حوالے سے ملاحظہ کرتے ہیں یہ رپورٹ. چترائی کا کام چترائی کا کام شروع سے چلتا آ رہا ہے. قدیمی زمانے سے یعنی کہ پہلے قدیمی برتن سونے کا یہ کام ہوا ہے. ان شاء اللہ وہ چیزیں بن گئی ہیں ایسے روک دیں گے, یہ چلتا رہے گا. یہ محنت ہوئی ہے جو کاریں جو بھی میں لگی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے کئی سال سے میں کہہ رہا ہوں کام سیکھا ہے. میرے بھی ماشاء اللہ شکر دے بنے خود بناتے ہیں ڈیزائننگ جتنا بھی کام ہے سارا پیار خود ہی کرتے ہیں. چاندی کا بھی کرتے ہیں, ڈیکوریشن کی استعمال کرتے ہیں. چائے ناری ہو گئی ہے, آپ کا ڈیکوریشن ہو گیا ہے, اور ان کی لائٹیں لگ گئی ہیں, جو خیال ہوگا نا یعنی کہ ہر چیز بنتی آ رہی ہے. پھر ہوئی زیادہ تر چیزیں باہر پاکستان کی شوقین بناتے ہیں, اپنے گھر بھی لاتے ہیں. آپ نے یورپ میں بڑا وزٹ کیا ہے, وہاں پہ ایسے کام کی کوئی مانگ ہے, وہاں پہ کوئی استعمال دیکھا جہاں پہ بر صغیر کی یہ چیزیں جو ہیں آپ کو دیکھنے کو ملی ہو؟ کوئی شک نہیں, یورپ میں جہاں بھی جائیں جس طرف بھی جائیں آپ کو ایسی چیزوں کی برباد ملے گی. ہر جگہ پر ہمارا یہ فنون لطیفہ جو ہے وہاں پر نظر آتا ہے. اور ابھی بالخصوص یہ رپورٹ دیکھ کر میرے ذہن میں یہ بڑی اہم بات آ رہی تھی, جیسے آپ بتا رہے کہ کہیں اس میں کمی تو نہیں آئی. الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آغاز بھی صحیح معنوں میں اسلام نے اس کا کیا, اور اس کو فروغ بھی صحیح معنوں میں یہ کنسپٹ کلیئر ہوئے تو اسلام کی وجہ سے. جیسے عقیدے کی بات ہو رہی تھی, ایسے ریلیونٹ ہے کہ اللہ رب العزت حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ جمیل و یحب الجمال, کہ اللہ رب العزت خود بھی حسین ہے اور حسن کو پسند کرتا ہے. اور یہی میں سمجھتا ہوں یہ فنون ہے جن کو ہم فنون لطیفہ کہتے ہیں کہ ان کے اندر ایک حسن پایا جاتا ہے. اور یہ سب یہ تو ساری باتیں ماضی کی ہو رہی ہیں. اگر اب امت مسلمہ جو ہے اور ساری جو اسٹیٹس ہیں اس کے کلچر میں علم دوستی اور علم فنون کے حوالے سے اگر دوبارہ ریوائول چاہیے ہو تو کیا اسٹیپس لینے چاہیے؟ ایک چیز جو بہت ضروری ہے وہ چیز ہے اونرشپ ود دی کلچر, کہ ہم اپنے جو کلچر موجود تھا اس کے ساتھ غربت میں بھی ہوتا ہے. مثلا سنبھال کے رکھنے والی بات وہ ہماری ریاڈی میں نہیں ہے. ہم پورے قلعے کی دیوار جو ہے
उसको रिस्टोर करते हैं और ऊपर हम जनाब अपना नाम पता सब कुछ फोन नंबर भी लिख के चले जाते हैं कि जैसे हम बहुत इम्पोर्टेंट आदमी है, हमें जनाब वो फोन करेगा कोई शख्स, ठीक है, या वो हम खास तौर पे वो नई कोई चीज बनी होगी उसके ऊपर अपना एक निशानी। मैं तो हैरान होता हूँ कि वो शैतान को जहाँ कंकर मारते हैं तो वहाँ एक दफा उम्रे के दौरान वहां चला गया तो खाली होती है जगह, तो उस शैतान को कंकर मारने की जगह पे हमारे अपने इस इलाके के लोगों ने अपना नाम पता लिखा हुआ था, ये नहीं पता उनको इस पर लाहौर पर भी कहीं भी फेंके जाए। तो ये अदालतवार जो है ये कॉमन के अंदर होती है, एक खास कैफियत के अंदर पैदा होती है, और वो कैफियत मीडिया बड़ा इंपॉर्टेंट चीज। आपका क्या हाल है, जो इस्लाम का बेसिक जो पहला 60-70 साल का दौर है उसके अंदर कोई कल्चरल कॉन्सेप्ट नहीं था इसका, फनून लतीफा का? आप खताती को लेखें, जैसे ही कुरान पाक का नज़ूल हुआ लिखने, मैं समझता हूँ कि खताती और कैलीग्राफी का काम ही कुरान के शगफ से शुरू हुआ और हर जगह पर यहीं से लिखने का काम शुरू हुआ, और जहां जहां पर मुसलमान गए वहां पर लिखने का काम शुरू हुआ। और फन तामीर जैसे मैंने अभी बताया, ये सारा स्पेन में, कार्डोवा में जो कुछ नजर आ रहा है ये सारा मुसलमानों का दिया हुआ है। ये तो बाद में आसूदगी के जो दिन थे उसमें क्या ताल्लुक रहा सर? तो उसमें एक तो अर्ज ये है कि उस दौर में हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की जो हयात तैयबा के दौर में, अगर उस दौर की अगर आप नातें देखें तो वो उससे बेहतर आपको कोई जो है नमूना जो है फनून लतीफा में नहीं मिलेगा। उसमें हजरत अबू तालिब की नात देखिए और जनाब सैयदा बीबी फातिमा की नात देखिए, यानी कि कौन सा साहबी, यानी वैसे तो कुछ नाम तो मशहूर है हसन बिन साबित के, लेकिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन की नात देखिए, हजरत अली की नात देखिए, तो तकरीबन हर शख्स ने आते और एक से एक फिर। और इससे बड़ी बात है कि हुजूर पाक अलैहिस्सलाम जिस दौर में खुद मौजूद है, जो कि इतने हसीन और जमील के अल्लाह के महबूब है, इब्तिदाई दौर में हुजूर पाक अलैहिस्सलाम आप तशरीफ फरमा है, उसमें अगर कोई ये कहे कि जनाब इसमें जो है फनून लतीफा नहीं है तो उस पर मतलब इस बात को लतीफा ही कह सकता है। जब हुजूर पाक जो कि हुस्न का खुद शाहकार है वो आप मौजूद हैं, तो ये कैसे कहा जा सकता है कि उस दौर में सहाबा कराम को दीदार के अलावा और क्या फनून लतीफा करते हैं? ये तो बाद में होश आई होगी। मैंने फिर कोई बात की कि तारीख इस बात पे गवाह है कि हम वो वाहिद लोग थे कि जिन्होंने सबसे पहले रिसर्च शुरू की, हम वो पहले लोग थे जिन्होंने रस्तगाहें कायम की, जिन्होंने बकायदा एस्ट्रोनॉमी, ये गैलीलियो बाद की बातें आई हैं बहुत। अब निजामुद्दीन तूसी जो है इसकी सबसे बड़ी रस्तगाह थी इस पूरे इलाके के अंदर। हम वो पहले लोग थे कि जिन्होंने लाइब्रेरी का रिवाज दिया, वरना चंद किताबें लोगों के घरों के अंदर, दुनिया का कोई खित्ता लाइब्रेरी की अहमियत नहीं देता। बगदाद की जो लाइब्रेरी चलाई गई है उस पर 40 दिन तक वो दजला का पानी जो है काला रहा है। हम वो पहले लोग थे कि जिन्होंने इबादतगाहों को खूबसूरतियां दी और विड्थ दी और उसमें मीनाकारी दी। हम वो पहले लोग थे कि जिन्होंने सिविक सेंस बिल्ड की। ये बात हमने शुरू की, लेकिन ये कहना कि हमने उनका इन्फ्लुएंस लिया, ये गलत बात है। कोई मुझे बता दे कि पूरे बड़े सगीर के अंदर एक मुगल इमारत जो है किसी हिंदू इमारत से मुख्तास होकर आई, मिलती जुलती। इब्तिदाई दौर में सादगी थी, लेकिन इस्लाम ने एक एस्थेटिक सेंस दे दी थी, बुनियाद फराहम करने, बुनियाद जमाली। जैसे अब मौलाना इसकी तारीफ करेंगे, जब यानी इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता रहता है तो उसमें हर चीज, और ये भी आदाब है कि अगर किसी को सफीर बना के भेजो तो उसमें क्या क्या चीजें देखो उसकी शख्सियत में। उसमें एक ये बात है कि वो बंदा खूबसूरत हो जिसे तुम सफीर बना के भेजो। दूसरी और एक अजीब गरीब आपको वो सुनाता हूँ हदीस शरीफ, आप शायद तारीफ करेंगे कि अगर तुम्हें कभी किसी से मांगना पड़ जाए कर्ज तो किसी खूबसूरत आदमी से मांगो। तो एक नजरिए जमाल जो था वो एक दे दिया गया था इस तरह की तालीमात के जरिए, ठीक है। और वो बाद में जब जैसे आपने फरमाया कि खुशहाली आई तो वो, बल्कि यहाँ भी है कि अगर कोई पेश नमाज के लिए आगे खड़ा करना है तो देखो के अंदर ये बात शामिल है कि नमाज के लिए जमील हो, नमाज के लिए खड़ा कर दो बंदा, तो अगर देखो नेकी देखो, तकवा देखो, इल्म देखो, फर्ज करो दो बंदे हैं, नेकी तकवा इल्म में बराबर है, फिर चूज करना, फिर देखो खूबसूरत कौन है उसको आगे कर। अच्छा, मैं बात कर रहा था लकड़ी के काम करने के हवाले से, इस्लाम का इस हवाले से क्या कंट्रीब्यूशन है? आर्ट में दो चीजें होती है, एक आर्ट होता है, एक उसका मीडियम होता है। दो चीजों में हम उसको वैरायटी पैदा करते हैं। तो खत्ताती में तो पहले दिन से वैरायटी पैदा हो गई थी कि उसमें चमड़े के ऊपर भी लिखा जा रहा है, खजूर के पत्तों के ऊपर भी लिखा जा रहा है, लकड़ी पे भी लिखा जाता है, लकड़ी पे भी लिखा जा रहा है, ऊंट के शाने की हड्डी मिल गई तो उसके ऊपर लिखा जा रहा है। यानी हड्डी का जो काम है उसकी भी बुनियाद वहां से फराहम हो गई कि इतने ज्यादा मीडियम तो उस दौर में इंट्रोड्यूस हो गए। लकड़ी की कलाकारी के हवाले से हमारे पास एक रिपोर्ट है, आइए देखते हैं ये रिपोर्ट।
इस्लामी तारीख फनून लतीफ़ा की बड़ी पेरी है। सदियों से लकड़ी पर कंधा कारी का काम हो रहा है। हर दौर में नए ट्रेंड आते हैं, लेकिन हमारे अपने पाकिस्तान में चिनोड़ का एक कल्चर है जो दुनिया भर में मशहूर है, और ये काम उसी कल्चर का हिस्सा है और कारीगरों की मेहनत और लगन के बगैर मुमकिन नहीं हो सकता। कुछ आइडिया हम अपनी तरफ से देते हैं, बाकी ये खुद ही डिजाइन करते हैं किताबों की मदद से और कुछ अपने तजुर्बात की मदद से और कुछ पुराने जो है सिलसिला चला आ रहा है उसकी मदद से ये बनाते हैं। जैसे अभी आपने रिपोर्ट देखी जो है जिस पर फर्नीचर का काम लकड़ी पे काम हुआ है, फर्नीचर पे काम हुआ है, और मुस्लिम जो है अभी आज के दौर की बात कर रहा हूँ कर रहे हैं ये काम, इस हवाले से मुस्लिम कंट्रीब्यूशन क्या है? लकड़ी का काम असल में मुसलमानों की कंट्रीब्यूशन है लेटर पीरियड की, 500, 400, 500 सालों के अंदर अंदर, और वो भी घरों के अंदर, घरों के दरवाजे आपको मसलन इस वक्त आप हैरान होंगे कि आधा भेड़ा जो है वो बिक चुका है, लेकिन भेड़ा के आज भी शहर के बाजार के अंदर जाएं तो आपको दरवाजों पे और आपको खिड़कियों पे कहीं पर यूरोप में इस तरह की कंधाकारी आपको नहीं मिलेगी। चिनोड़ का जो फन है ये कहीं आपको इस तरह की दुनिया में कहीं भी मिलती है ये जो लकड़ी के काम की जो मुस्लिम कंट्रीब्यूशन। और आप हैरान होंगे, एक और बात बताओ कि ये कंधाकारी आपको पूरे बरसगीर में मुसलमानों के अलावा कहीं और नहीं मिलती। नाज़रीन, इंसानी तहजीब और तमद्दुन की डेवलपमेंट में उलूम फ़नून का अहम रोल है। जदीद फाइन आर्ट्स में मुस्लिम हुनरमंदों का किरदार नाकाबिले फरामोश है, जिसका गैर मुस्लिम मर्रखीन भी वाज़ेह तौर पर एतराफ़ करते हैं। आइए दौर हाज़िर में अपने हसीन माजी को फिर से जिंदा करें और इल्म हुनर को अपना जेवर बना लें, क्योंकि इरशाद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है अल-कासिबु हबीबुल्लाह, कि हुनरमंद अल्लाह का दोस्त है। सलीम मानिश को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।